بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سامعین محترم، آج جو موضوع زیر بحث آئے گا وہ موجودہ صورتحال میں اخلاقیات کے تقاضے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے دو مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں زینت القرآن قاری محمد عبدالغفار نقشبندی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان معروف نعت خواں جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ بارگاہ رسالت میں آپ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ گفتگو کے مرحلے میں جو ہمارے معزز مہمان ہوں گے ان میں صاحبزادہ غلام جیلانی آفتاب، آپ ممتاز ماہر تعلیم اور سماجی رہنما، اس کے علاوہ ایڈیفی ہائی اسکول کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر۔ ہمارے دوسرے مہمان جو اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو میں حصہ لیں گے اس میں نامور اسکالر اور موٹیویشنل اسپیکر، خطے کی نامور کاروباری شخصیت، گلستان گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ عزیز دوسرے مرحلے میں پھر ہم اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سو میں زینت القرآن جناب قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ جناب قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ماشاء اللہ۔ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ماشاء اللہ۔ واعلموا أن الله غني حميد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واللہ مغفرة منہ وفضلا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما شاء اللہ. وما يذكر إلا أولو الألباب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما للظالمين من أنصار. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں معروف ثناخواں جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی. نہ تمہارا کوئی جواب ہے، نہ تمہاری کوئی مثال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت مصرع ہے. نہ تمہارا کوئی جواب ہے، نہ تمہاری کوئی مثال ہے کہ تمہیں ہو رونق دو جہاں، کہ تمہیں ہو رونق دو جہاں. یہ تمہارا جمال ہے، سبحان اللہ نہ تمہارا کوئی جواب ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میری فرد جرم نہ دیکھیے، میری معصیت میں نہ جائیے، میری فرد جرم نہ دیکھیے، میری فرد جرم نہ دیکھیے، میری معصیت میں نہ جائیے،
سر حشر کملی اڑائیے سبحان اللہ میرا بچنا ورنہ محال ہے سبحان اللہ نہ تمہارا کوئی جواب ہے گو میرے خمیر میں ہے گناہ گو میرے خمیر میں ہے گناہ مگر وسیلہ دو جہاں گو میرے خمیر میں ہے گناہ مگر وسیلہ دو جہاں یہ ہے تیری بندہ نوازیاں یہ ہے تیری بندہ نوازیاں تجھے آسیوں کا خیال ہے یہ ہے تیری بندہ نوازیاں سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے آستان پہ سر جھکے جو اٹھاؤں تو بھی نہ اٹھ سکے سبحان اللہ یوں ہی خاتمہ ہو خدا کرے یہی آرزوئے ہلال ہے یوں ہی خاتمہ ہو خدا کرے یہی آرزوئے ہلال ہے نہ تمہارا کوئی جواب ہے نہ تمہاری کوئی مثال ہے نہ تمہارا کوئی جواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین محترم جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے روز شمع کی ہو محفل رونق بنے ویجیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ابھی ممی کا ہے یہ دعا روز شمع کی ہو محفل رونق بنے ویجیبل
है शमा तकरार भी यही प्यार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी रोज शमा की हो महफिल और तूने भी टेबल बोलिया साकी की जुबान है शमा की जुबान है शमा टॉयस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो
किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए, इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन, मक्स न्यूज़ की जानिब से दूसरे मरहले में मैं अपने मौजूद मेहमान जनाब ग़ुलाम जिलानी आफ्ताब, मुमताज़ माहिर तालीम और एडिफी हाई स्कूल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह मुमताज़ कारोबारी शख्सियत, मोटिवेशनल स्पीकर जनाब कारी मियाँ अब्दुर्रऊफ़ कुरैशी साहब, आपको भी मक्स न्यूज़ की जानिब से आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सामिन मोहतरम, आज हमारा मौजूदा सूरत हाल में अखलाकियात के तकाज़े यकीनन एक बहुत बड़ा मौजू है और इस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है। और फ़ी ज़माना अखलाकियात की जितनी ज़रूरत आज है, यकीनन इससे पहले हमें महसूस नहीं हुई। नई नस्ल क्या सोचती है, बुज़ुर्गों के क्या ख़यालात हैं, हमारे रोल मॉडल कौन थे और आज क्या हो रहा है, इस सारे मामले को हमारे मौजूद मेहमान जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सबसे पहले जनाब ग़ुलाम जिलानी आफ्ताब से गुजारिश करूँगा कि अखलाकियात के मामले में जो हमारे रोल मॉडल्स थे, ज़रा इस पर रोशनी डालिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया सईदी साहब, आपने जो आज टॉपिक चुना है ये यकीनन मुआशरे में इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त इस हवाले से गुफ्तगू करना। मैं तमहीदन यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि सबको मालूम है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त भी नबी थे। और मारूफ हदीस है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, लेकिन इससे कबल 40 साल किस चीज़ का ताक़ुफ़ किया गया, उस अरसे में आपने सादिक और अमीर बनकर इस मुआशरे को दिखाया। ये था वो इखलाक कि जिसको इस मुआशरे में दिखाना था। एक शख्सियत को इस हवाले से पेश किया जाना था कि वो नबी है, लेकिन उससे पहले वो तमाम तकाज़े, वो कितना दयानतदार है, उसके इखलाक कैसे हैं, उसके मामलात लेन देन के कैसे हैं, ये सब कुछ साबित करने के बाद फिर फरमाया कि मैं नबी हूँ। तो ये नौबत तब पेश आई। अब इसी तरह बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊँगा कि अमूमन हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि बच्चा 6 से 5 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, लेकिन उसको कहाँ, कितना और कैसे बोलना है, इसके सीखने में उम्र लग जाती है। यकीनन। तो इस वक्त जो मुआशरे में इखलाकी गिरावट है, जो इस वक्त हमारी इनतात है और जिस तरफ मुआशरे को बेरा रवी लेके जा रही है, इसमें ज़रूरी है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़े हमीदा से वो तमाम तालीमात लें और उन पर अमल करें, तो मुआशरे में बेपनाह इखलाकी तकाज़े पनप सकते हैं। कारी साहब, जिलानी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मौजूदा दौर में आज इस वक्त वालिदैन जो हैं वो परेशान हैं कि नई नस्ल जो है वो उनकी बात नहीं मान रही, और नई नस्ल को ये शिकवा है कि वालिदैन जो हैं वो हम पर प्रेशर डालते हैं। तो इस सारे मामले में आप क्या सोचते हैं कि किस तरह जो है इस मामले को हल किया जाए और अखलाकियात के जो तकाज़े हैं उनमें माँ बाप भी पूरे उतरें और बच्चे भी उनका अदब करें? तो ज़रा इस बात को आगे बढ़ाइएगा। देखें, पहली बात तो ये कि बच्चे वो काम करते हैं जो वालिदैन को काम करते हुए देखते हैं। यकीनन ऐसे ही। बच्चे वो काम नहीं करते जिसका वालिदैन कहते हैं। दुरुस्त। मैं दोबारा दोहराता हूँ। दुरुस्त, बड़ी अच्छी बात जी जी। जो हम अपने बच्चों को कहते हैं, जो बात हम करते हैं, वो बच्चे वो काम नहीं करते। ठीक। बच्चे वो काम करते हैं जो हमें वो काम करता हुआ देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बच्चों को कहेंगे कि बाहर कोई आया है, उसको जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो मैंने पहला उसको सबक झूठ का दे दिया और फिर जो बोओगे वही काटोगे। अब वो जो बीज मैंने झूठ का बोया है तो वो तनावर दरख्त बन के मेरे सामने आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब वालिदैन को किस चीज़ का गिला शिकवा है? बजा फरमाया।
गिला शिकवा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमने इसी तरह से ये जो पेरेंटेशन है ना, बच्चों की जो तरबियत है, बच्चे तो बाद में आते हैं, वालिदैन पहले आते हैं। अब वालिदैन को पता ही नहीं है कि बच्चों की तरबियत करनी कैसे है। दुरुस्त। क्योंकि मुझे जब अल्लाह ने बच्चे दिए तो मुझे तो तरबियत ही नहीं है मेरे पास कि मैं तो उसी तरह तरबियत करता हूँ जिस तरह मेरी तरबियत मेरे वालिदैन ने की और जिस तरह उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की। बिल्कुल दोस्त, ठीक है। अभी आप मुझे बताएं, अगर मुझे गाड़ी दे दें आप या मुझे गिटार दे दें, वो मेरे पास आ जाए, क्या मैं उसको मेरे पास आने से मैं गिटार चलाना सीख जाऊंगा या गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा? मैं नहीं सीख सकता ना। इस तरह जब बच्चे अल्लाह पाक हमें नेमत देता है तो दर हकीकत हमें उसकी तरबियत भी लेनी चाहिए कि हमने उनकी तरबियत करनी कैसे है। बिल्कुल सही। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी झूठ मूठ में भी ना कहो कि मुझे बुखार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपने झूठ मूठ में कह दिया कि मुझे बुखार है तो सचमुच में बुखार हो जाएगा। अल्लाह जी, अकबर, अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी बच्चों को झूठी तिफल तसल्ली ना दो कि मैं ये काम करो मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा। कभी भी बच्चों को आप झूठी बात से उनको तसल्ली ना दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके अखलाक हसना है। यकीन ऐसे ही, यकीन ऐसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरबियत करके ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। जी, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ से इज्तनाब करो। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी गुनाहगार पे लानत शायद ना भेजी हो सिवाय झूठे इंसान के। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। यकीनन ऐसी है। जिनल भाई, आप माहिर तालीम भी हैं, एक स्कूल सिस्टम है उससे आप वाबस्ता हैं, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो आज एक मौल्लिम, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के अंदर अखलाकियात किस तरह पैदा करे, उन्हें क्या सबक दे कि वो माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। मुअल्लिम के लिए तो यकीनन रोल मॉडल्स होते हैं कि जिनको पढ़ने के बाद, जिनके सीरत पढ़ने के बाद वो अपने उस जनरेशन को डाइवर्ट करते हैं कि जिनकी वो तरबियत और तालीम कर रहे हैं। इससे कबल कि मैं इसकी तफसील में जाऊँ, मैं सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मारूफ हदीस मुबारक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में असहाब ने आके अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन हमें हुज़ूर के इखलाक के बारे में बताइए। तो आपने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सरापा इखलाक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान है। तो हमारे आज के जो टीचर्स हैं उनके लिए तो रोल मॉडल हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका है। बेशक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चा स्कूल में तालीम के लिए आता है वो तरबियत से महरूम है। तालीम और तरबियत दोनों लाजिम और मलजूम हैं। हमारे यहाँ पेरेंट्स 4 से 5 घंटे के लिए जब पेरेंट्स स्टूडेंट्स को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, तो वो ये समझते हैं कि स्कूल इनको इस 5 घंटे के दौरानिए में हर चीज़ मुकम्मल कर देगा। और आजकल के कहतो रजाल के दौर में पेरेंट्स के पास भी ये टाइम नहीं है, वालिदैन के पास भी वो टाइम नहीं है कि वो रोज़गार के मामलात को देखें या तरबियत के लिए वक्त निकालें। तो इसमें सबसे अहम किरदार उन असातिज़ा का है कि जिन्होंने दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। और मैं इस बात को थोड़ा सा कता कलामी माफ कि जब एक शख्स तालीम हासिल कर लेता है, बज़ाहिर उसने MA कर लिया, MSc कर लिया, MPhil कर लिया, PhD कर ली, बज़ाहिर तालीम उसने मुकम्मल कर ली, तो क्या तालीम मुकम्मल करने के बाद भी हम ये महसूस करते हैं कि उसके अंदर वो अखलाकी तकाज़े पैदा नहीं हुए जो होने चाहिए थे? तो इसके पसे पर्दा ऐसे क्या अवामिल हैं कि जो हमें महसूस होते हैं या आम आदमी को महसूस होते हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ कि उसकी जो तालीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन किताबों तक महदूद होकर रह गई है, उन कैरिकुलम्स तक महदूद होकर रह गई है, उस निसाबी कुतब तक महदूद होकर रह गई है, और उसकी तालीम तरबियत से महरूम हो चुकी है। जब तक मुआशरे में तरबियत करने का बेड़ा कोई नहीं उठाएगा तब तक ये मसाइल इसी तरह से चलते रहेंगे। आपको याद होगा कि हमारे बचपन में जो नानी और दादी होती थी वो बड़ा अहम किरदार अदा किया करती थी। वो रात को चूल्हे के पास बिठाकर बच्चों को खाना देती थी और साथ रोज़ाना एक कहानी सुनाती थी। वो कहानी एक तरबियत होती थी। वो तरबियत से महरूम हो गई हमारी ये नौजवान नस्ल। जब तक हम अपने असलाफ की तरफ नहीं लौटेंगे हम मुआशरे में इसी तरह की इखलाकी गिरावटें देखते रहेंगे। हमारे जितने भी असलाफ थे
उन्होंने सिर्फ इखलाक की बुनियाद पर लोगों को फतह किया है और कलमा तक पढ़ा दिया है। तो ये वही चीज़ें हैं, हमें अपने असल की तरफ लौट कर जाना है। डिग्रियां नहीं करती फैसले फरासत के, डिग्रियां नहीं करती फैसले फरासत के, तरबियत बताती है ख़ानदान कैसा है। बिल्कुल सही बात। तो कारी साहब ज़रा इस बात को आगे बढ़ाइए कि आप कारी भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मुआशरे से भी आपका एक गहरा राब्ता है, तो ये तरबियत जो है इसमें क्या कजी रह गई है कि हम महरूम हो गए हैं अखलाकियात से, और क्या अखलाकियात का दायरा कार सिर्फ मखसूस है या हर फील्ड में जो है वो अखलाकियात की ज़रूरत है? ज़रा इस बात पे थोड़ी सी ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बेशक है। देखे ना, वो शीर ख्वार बच्चा है, बाप ने उसको आके वादिये बिल्कुल ज़रा के अंदर आके छोड़ दिया, बयाबान वादी के अंदर। उसके बाद जब वो चलने के काबिल हुआ तो उसके वालिद तशरीफ़ लाते हैं, वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। और वो कहता है कि ठीक है, जो आपने ख्वाब देखा वो मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, तो उमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, बस आप वो अमर कर डालें जिसका आपको हुक्म हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लामा साहब ने फिर कहा ना कि ये फैज़ान नज़र था, या कि उसने तो बाप को देखा ही नहीं था। वाह वाह वाह। वो तो अगर आज का कोई बच्चा होता तो वो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक यही कहता कि अब्बा जी जब मैं छोटा सा था तो मुझे मरने के लिए ईडियाँ रगड़ रगड़ के इधर मरने के लिए छोड़ के चले गए, अब मैं थोड़ा सा बच गया हूँ तो जनाब मैं चलने जोगा हो गया, अब आपको ख्वाब आने शुरू हो गए। बिल्कुल जी, और वो भी ख्वाब भी सीधे डायरेक्ट मेरी गर्दन पे छुरी फेरने के। तो ये फैज़ान नज़र था, बिल्कुल ऐसे, या के मकतब की करामत थी। हमने जब से अपनी जैसे ये नानी दादी वाला कल्चर छोड़ा है, जिस तरह से माँ को अब एहतराम जब एक बंदा नहीं देता, अपनी बीवी को एहतराम नहीं देता, उसको बिल्कुल उसका अदब ही नहीं करता। जब आपने मुआशरे में ये चीज़ फैला दी है कि ये जो बीवी हैं ये पाँव की जूतियाँ हैं, जब आपने फैला दी है, ये सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं। अब औलाद सारा दिन देखती है अपनी माँ को जलील होता अपने बाप के हाथों, तो वो माँ उसको लेक्चर देगी कि तेरा बाप बहुत अच्छा इंसान है। जब माँ वो ये समझाएगी नहीं उनको, तो ये एक खला है जिसमें हमें एक दूसरे के इज़्ज़त नफ्स का एहतराम करते रहना चाहिए, और ये मुसलसल अमल है। यकीनन ऐसे ही है, मुसलसल ये अमल है। जिलानी साहब, मिन हैसुल कौम, अगर हम अक़वाम आलम का जायज़ा लें तो वो बहुत सारी खूबियाँ जो बैतौर मुसलमान हमारे अंदर होनी चाहिए थी, वो उन गैर मुस्लिमों में हैं जिनकी तारीफ़ की जाती है। और हमारे यहाँ जो अखलाक़ की गिरावट है वो इस हद तक बढ़ गई है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी कर दी जाती है कि जो उससे पहले कभी नहीं सुनी। तो क्या ये अखलाकियात का जो दायरे कार है ये महदूद है या हर शख्स पर लागू होता है? मैं अर्ज़ करूं कि इसके पीछे हमें इसकी हकीकत की तरफ जाना होगा। जिन ममालिक को आज हम तरक्की याफ्ता मुल्क कह रहे हैं, सही, और जिनके एथिक्स पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से अपने कवानीन को ढाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप यूके की मिसाल ले लें, वहाँ उमर लॉ जो है वो बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह। और जब वो हमारे असलाफ को, हमारे असहाब को, हमारे अंबिया कराम की सीरत को इस तनाजुर में लेंगे और बतौर निसाब पढ़ाएंगे, तो फिर यकीनन मुआशरे इसी तरह के होंगे कि जिनकी मिसाल आप और मैं दे रहे हैं। यहाँ पर एक असूल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से हमें मिलता है जो आपने उम्मत के लिए तालीम फरमाया है। मारूफ हदीस मुबारका है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, फ़लाँ सहाबी बेपनाह इबादत करते हैं, बेपनाह इबादत गुजार हैं, और उनकी इबादत की बहुत तारीफ़ की आपके सामने। तो हजूर ने फरमाया, तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो, क्या तुमने कभी उसके साथ लेन देन किया है? क्या कभी तुमने उसके साथ सफ़र किया है? क्या कभी तुमने उसके साथ खाना खाया है? तो कभी अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर तुम उसकी तारीफ कैसे कर सकते हो? तो इखलाक के लिए जो बुनियादी असूल बताए गए वो ये 3 हैं। अगर हमने किसी के शख्सियत का अहाता करना है और अपने बच्चों के रिश्ते करने हैं तो खुदारा इतनी जल्दी ना करें। इन तमाम असूलों को जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए हैं, इनको पनपने दें, इनके साथ उनका जायज़ा लें, तो मुआशरे के बहुत से मसाइल आपके हल हो जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छी गुफ्तगू की। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है,
ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل، دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل، بولی دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع، وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ ہر
बूम मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिप्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिप्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन। इंजीनियर साहब, मुआशरती बिगाड़ के खात्मे के लिए हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? इसमें सबसे अहम किरदार वालिदैन का है कि वो अपने बच्चों पर, जो आजकल का सोशल मीडिया है वो ये एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है इखलाकी गिरावट की। बिल्कुल सही। और इस पर जो मवाद बच्चे देख रहे हैं वो यकीनन हमारे आने वाले दौर में मज़ीद इखलाकी गिरावट की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो प्रॉब्लम एक ये आ रहा है कि ये लॉकडाउन के दिनों में ख़ास तौर पर जो चीज़ देखी जा रही है कि मोबाइल फ़ोन के यूजेस और लैपटॉप या कंप्यूटर के जदीद अलूम ये वालिदैन बच्चों से सीख रहे हैं। बच्चे वालिदैन को एजुकेट कर रहे हैं कि मोबाइल को ऐसे यूज करना है। तो जब बच्चे उस्ताद बनकर आपको एजुकेट करेंगे तो यकीनन फिर आप उनके प्रेशर में दब जाएंगे। तो उस मवाद पर नजर रखनी है कि जो बच्चे देखते हैं क्या वो काबिल एतराज है, तो उस पर आपने अपने घर के माहौल के मुताबिक क्या कानून और ज़वाबित तय करने हैं। ये उन वालिदैन का किरदार इसमें बहुत अहम है। अच्छा जीना साहब, इसमें एक बात जो मुझे महसूस हो रही है कि जो गैर मुल्की कार्टून्स हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के बने हुए कार्टून हैं, जिसमें वो अपनी तहजीब और तमद्दुन हम पर जो है आहिस्ता आहिस्ता लागू करते जा रहे हैं और बच्चे भी उससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं, तो क्या ये चीज़ भी हमारी अखलाकी गिरावट की जिम्मेदार है? यकीनन हमें, चूँकि शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ मैं, तो हमें बहुत सी ऐसी मिसालें रोज़ देखने को मिलती हैं कि बच्चे हिंदी के वो अल्फाज बोलते हैं जो उनके मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी निकाह की जगह वो फेरों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की बहुत सी बातें। यहाँ पर हुकूमत वक्त का अहम किरदार है। जो इदारे इस सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि ऐसे मवाद पर पाबंदी लगाएं। और ऐसी बहसें दीन के मुतल्लिक शुरू हो चुकी हैं कि मोहलत फ़िरके हैं, बाकी मामलात हैं, इन पर बतौर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। अगर हमने आज इस पर रोकथाम न की तो हमारी आने वाली नस्ल हमसे बुनियादी दीन के सवाल करना भी भूल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। क़ारी साहब, मस्जिद और मिंबर बड़ी हैसियत के हामिल हैं, खिताबत भी हो रही है, लेकिन जो बात मुंह से निकलती है वो लोगों के दिलों में घर नहीं कर रही। आखिर इसकी क्या वजह है? कहीं कौल और फ़िल का तज़ाद तो नहीं है? बड़ी मेहरबानी। ऐसा नहीं है कि घर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि ये अगर लोगों के दिलों में घर ना कर रहा होता ये मामला, तो ये स्पीकर पे पाबंदी जो है ये ना लगाई जाती, ठीक है। और ये कोरोना के बहाने मसाजिद को ज़्यादा से ज़्यादा निशाना न बनाया जाता। आज भी मस्जिद मरकज़ व महवर है और मिंबर आज भी पूरी ही इस्लाही जो हमारी इनकलाबी सोच है इस्लामी, उसका मरकज़ व महवर आज भी मिंबर है। मेरी मुराद क़ारी साहब ये है कि जो अखलाकी मामलात हैं जी, ज़ाहिर बात है जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अखलाकियात के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो क्या कहीं हमारे कौल व फ़िल में कोई तज़ाद तो नहीं है जिसकी वजह से मामला जो है बिगड़ रहे हैं? देखें, जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया ना, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने पहले दिन से, ये सारी चीज़ें मोहब्बत, ये नफ़रत, ये इंतकाम, ये हसद, ये गीबत, ये दुश्मनी, ये सब अल्लाह ताला ने जिस मिट्टी से गूंदा था उसमें पहले दिन से शामिल किया था। हो गया। आज आप सोशल मीडिया को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। आप मुझे बताएं, हाबिल काबिल का जब कत्ल हुआ उस वक्त कौन सा सोशल मीडिया था?
कौन सा प्रिंट मीडिया था? कोई नहीं था। ये तो एक फैशन बन गया, बैठ के जो भी मीडिया है उसको आप मोर्द इल्ज़ाम ठहराते रहें। अगर वालिदैन सीख रहे हैं बच्चों से, व्हाट्सअप सीख रहे हैं या कोई और चीज़ सीख रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? अल्लामा इकबाल साहब और क्या कह के गए थे? यही तो फरमाया था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये उन्होंने तो कहा था, और क्या कहा था उन्होंने? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बात यह है कि उसका इस्तेमाल हम अपने बच्चों को खुद तवज्जो नहीं देते। हमने अपने बच्चों को लावारिस छोड़ दिया है, हमने उनकी तरफ खुद भी उन दिलचस्पी लेनी छोड़ दी है। तो फिर अब वो जिधर जाएं तो उसमें कौन सा इशू है? नहीं कारी साहब, इसमें दिलचस्पी ना लेने की क्या वजह है? आप क्या महसूस करते हैं कि इसमें मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसमें मुआशी रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, और एक ट्रेंड भी बन जाता है। सोशल हमारा ट्रेंड है बच्चों में और बाप में और बेटों में, इस तरह ज़रा थोड़ा सा गैप रख के चलना कि जी ज़रा प्रेशर शराशर डाल के रखना, ज़रा रोब शॉप, बच्चे फ्री हो जाते हैं। मैंने जी बच्चों को खींच के रखा हुआ है, मैं ऐसे जाता हूँ बस मेरे बच्चे सर ऐसे हो जाते हैं। मतलब ये अजीब व गरीब किस्म की, ये गलतुल आम किस्म की मुआशरे के अंदर ये चीज़ें फैल गई हैं, जो कि अभी बार मिसफिट है। ये फैशन ना, वो किसी ज़माने में शायद फिट होते हों, अभी तो ये मिसफिट हो गए हैं। अब तो आपको अपने बच्चों से दोस्ताना ताल्लुकात बना के उनके साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई और दुश्मन टाइप लोग उनसे दोस्ताना ताल्लुकात बना के उसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये हो रहे हैं हमारे बच्चे इस्तेमाल। और बिल्कुल मिंबर की बात सुनी जाती है, मिंबर पे अमल होता है। आपने देखा अभी जो कोरोना का ये वबा आई, आपने देखा सखावत कहाँ हुई है? आपने लंदन में कभी सखावत देखी है आपने? अमेरिका में तो उन्होंने स्टोर लूटे हैं, अमेरिका में तो उन्होंने बंदूकें हासिल की हैं सबसे ज़्यादा, कि जी जो हमने ज़ख़ीरा किया है वो हमारे से आके कोई लूट ना ले। क्या उनके अखलाकियात हैं? जब पिछली दफ़ा उधर न्यूयॉर्क में जब सैलाब आया था और जब वहाँ पर तूफान आया था, तो आपने देखा था कि लोगों ने वहाँ पर जो हशर किया और जो वहाँ पर जो बुलंदकार हुए और जो वहाँ पर अजाब नाजिल हुआ, क्या अखलाकियात हैं उनके? ये तो एक फ़ैशन बना हुआ जी, वो बड़े अखलाकियात वाले लोग हैं। ये इधर आपको सखावत नज़र नहीं आती। ये सारा दिन जो आप देखें देगें पक रही हैं, राशन तकसीम हो रहा है, आप देखें कौन सा ऐसा मामला है सखावत का जो पाकिस्तान के एक एक गली गली कूचे कूचे एक एक चप्पे चप्पे पे हो रहा है। ठीक है ना जी, ये हमारा एक अलमिया है कौमी कि उन चीज़ों को कोई उभारता ही नहीं है। आज भी आप देख लें कोई ज़रूरतमंद है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या फरमाया? फरमाया ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबरी सबील। ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं। जिलानी साहब, हमारे अकाबरीन चाहे वो सियासी हो या समाजी, जब उनके कौल व फ़ेल पे तज़ाद में नज़र आता है तो उसके असरात मुआशरे पर पड़ते हैं और नस्ल नौ पर पड़ते हैं। तो आखिर इस बिगाड़ को हम कैसे रोक सकते हैं? कहीं तो इसे हमें रोकना होगा ताकि हमारी नस्ल नौ जो है वो इससे महफूज रह सके। मैं इसमें कारी साहब के मौक़िफ़ से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफ राय का मौजूद है, गुजारिश करूँगा कि इखलाक ईमान की छत है। अगर छत नहीं होगी तो मकान का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे वो लोग जो इस्लाह मुआशरा की तरफ लोगों को लाना जिनका काम है, उनके कौल व फ़ेल में तज़ाद पाया जाता है। अब तज़ाद की बुनियाद क्या है? मैं यहाँ पर इस पर थोड़ी सी आपको सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका बयान करूँगा। एक वाक़या है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाब के झुरमुट में बैठे हैं और आपने सवाल किया असहाब से कि तुम्हारे नज़दीक ईमान की सबसे अहम चीज़ क्या है? जवाबन असहाब ने अर्ज़ की कि सरकार नमाज हो सकती है। कुछ साहब ने कहा जहाद हो सकता है, कुछ ने कहा हज हो सकता है, कुछ ने कहा जहाद फी सबीलिल्लाह। इस तरह की बहुत से जवाबात आए, लेकिन सरकार मुतमिन नहीं हुए। आपने जवाबन असहाब ने कहा कि फ़िदा की अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप जानते हैं या अल्लाह और उसका रसूल जानता है, आप फरमाइए। तो आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन ईमान की जो चीज़ है वो तुम्हारे इखलाक हैं। अब ये सबक है उन लोगों के लिए कि जो मिंबर और महराब से वाबस्ता हैं। अब होता क्या है कि वो नमाज के ज़ोम में, वो हज के ज़ोम में, वो अपनी नफली इबादत के ज़ोम में उन लोगों को उस तरह से ट्रीट नहीं करते, उनकी उस तरह से तरबियत नहीं करते जो इस वक्त मुआशरे को दरकार है। तो इसमें जो इस्लाफ थे हमारे, जो हमारे बुजुर्गान दीन थे, उनके किरदार को सामने रखते हुए महराब व मिंबर के उन लोगों को कवायद व ज़वाबित बनाने होंगे, उन असूलों पर इस कौम की तरबियत करनी होगी और फिर ही जाकर यहाँ पर बेहतरी आ सकेगी। मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब, मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है।
ہم جس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، آخر اس سے ہم معاشرے کو کس طرح نکال سکتے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایک بہترین عملی نمونہ ہے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت، جو بالکل تاریخ اسلام کا سب سے ایک تاریخی ایک موڑ ہے، بالکل ایسے اس موڑ میں جب تمام کفار مکہ کٹھے ہو گئے، آپ نے جب ہجرت کی، اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھیں. یقیناً یقیناً جی کسی کافر نے اپنے عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا تو امانتیں موجود تھی نا. یقیناً صادق و امین تھے. جی صادق و امین تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی کس طرح سے تنبیہ فرمائی. جی آج ہمارے مسائل، ہمارے گھروں کے مسائل، زیادہ تر اس کا انحصار 90% غیبت کے اوپر چل رہا ہے. جی ہم سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی سچ ہے یا غلط ہے، وہ تو یہ کہہ رہا تھا. جی یہ 90% فساد کی جڑ ہے. اور اخلاق کا 90% کیا ہے؟ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. 90% یقیناً. جی صاحب، نسل نو تک یہ بات پہنچ رہی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو انہیں متاثر کر رہی ہیں. تو آخر ہمیں اجتماعی طور پر ایسے کیا ثوابدیدی اختیار استعمال کرنے چاہیے کہ ہم معاشرے کو اس بگاڑ سے محفوظ رکھ سکیں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ والدین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اور وہ جب تک وہ وقت نہیں نکالیں گے، وہ ان کی تربیت کے لیے بہت ضروری پہلو ہے جس کی طرف سے ہمارے اس معاشرے نے آج کل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اب دیکھیے کہ سکولز میں ہمارے زمانوں میں بزم ادب ہوا کرتا تھا. اس میں بچوں کو بولنے کا سلیقہ بتایا جاتا تھا، اس میں آداب سکھائے جاتے تھے، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سکھائی جاتی تھی اور ان سے ان کی ذات کا عشق جو ہے وہ وابستہ کیا جاتا تھا. تو یہ جب چیزیں ہم اپنے اسلاف کی طرف، اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹیں گے، تب تک اسی طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے رہیں گے اور ہم اسی طرح پریشان رہتے رہیں گے. طاہر صاحب، آخر میں مکس نیوز کی جانب سے کوئی ایک ایسا میسج جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بہت خوشگوار موڈ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ آج میں بہت خوشگوار موڈ میں، مانگو تم کیا مانگتی ہو. سبحان اللہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہا کہ آقا جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے قربت حاصل ہے، مجھے دنیا میں اور کس چیز کی حاجت ہے. بہرحال آپ نے آفر کی ہے، تو اگر اجازت ہو تو میں مشورہ کر لوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مشورہ کر لو. تو حضرت بی بی پاک نے اپنے والد صاحب، قریبی گھر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان سے مشورہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف یہ پوچھیں، یہ سوال کریں کہ معراج والے دن کی رات جو اللہ پاک اور آپ کے درمیان میں جو باتیں ہوئی نا، اس میں سے کوئی بات بتائیں. واہ. تو آپ نے جب آ کے یہ سوال کیا تو آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سوال کس کا تھا. تو آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دو مومن مسلمانوں میں اچھے اخلاق کی وجہ سے محبت قائم رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب وہ جو کمٹمنٹ تھی کہ میں سوال آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے واپس آ کے بتانا بھی ہے آپ. واہ. تو آپ دوبارہ حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئی اور ان کو جا کے یہ جواب بتایا. اب اس کے جواب میں حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے عرض کی ابا جان یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، اللہ جنت دے گا. تو انہوں نے فرمایا بیٹا اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس طرح کر کے دیکھیں نا، اس کو اگر الٹ کر کے دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اخلاق کی بنیاد پہ آپس میں محبت قائم نہیں کرے گا اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے ہی جہنم فی النار کیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ اخلاقیات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کے اوپر بھی رحمت فرمائی جو بڑھیا ان کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی. یقیناً ایسے ہی. آپ نے تو طائف والوں کے ظلم کے بعد بھی ان کو دعائیں دی. یقیناً. تو آج اس امر کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی اخلاقیات کو اپنا
पेशवा, अपना रहबर, अपना रहनुमा समझ के उसी पे अमल किया जाए। गुलाम जिलानी आफ्ताब साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम होने जा रहा है, तो मक्स न्यूज़ की जानिब से कोई ख़ास मैसेज जो लोगों तक आप पहुँचाना चाहिए। मैं इसमें ये बात ज़रूरी समझता हूँ कि हर ज़ात और फ़र्द मिलकर मुआशरा और कौम बनाते हैं। हमें आज से अपनी ज़ात का अहाता करना है, हमें अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा करना है। जैसा कि कहा जाता है कि किसी के इखलाक के बारे में पता करना है तो उसके घर से मालूम करो। बाहर तो हम हर एक के साथ बहुत अच्छे इखलाक से पेश आएंगे। हमारे सीनियर्स का अदब हम पर इसलिए वाजिब है कि वो हमारे बॉसेस हैं। हमारा उनके साथ क्या बर्ताव है कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, कि जो उस सोसाइटी में रहते हुए उस महरूम तबके को हमने कैसे एड्रेस करना है। सामिर मोहतरम, आज आपने अखलाकियात के हवाले से गुफ्तगू समात की। वक्त की ज़रूरत यही है कि हम मुआशरती बिगाड़ के ख़ात्मे के लिए अपने अखलाकियात के दायरे को उस हद तक ले जाएं कि जो हमारे अकाबरीन ने जिस अंदाज से हम तक पहुंचाया, और वो जो रोल मॉडल्स थे जिन्हें देखकर मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो मुझे यकीन है कि आज जो कुछ मक्स न्यूज़ के ताउन से आप तक पहुंचा, आप यकीनन उसे अपने दिल में घर करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ